নমস্কাৰ মই ঋতুৰাজ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সদনৰ মজিয়াত এতিয়া এক প্ৰকাৰ গৰ্জন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছে ঈদৰ সময়ত মুছলমান জনতাক ৰাজপথৰ ওপৰত নামাজ পঢ়িবলৈ দিয়া হোৱা নাই। বিজেপিয়ে এনে ধৰণৰ কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে। ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰি এক প্ৰকাৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ এতিয়া তীব্ৰ গৰ্জন সদনৰ মজিয়াত। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। ৱাকফ সংশোধনী আইনক লৈ লোকসভাৰ মজিয়াত গৌৰৱ গগৈৰ তীব্ৰ গৰ্জন। মুছলমানৰ পক্ষত থিয় দি এতিয়া ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা। মুছলমানৰ পক্ষত থিয় দি লোকসভাৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। ভাৰতীয় সংবিধানৰ মতেই মই লোকসভাৰ মজিয়াত ভাষণ ৰাখিছো বুলি উল্লেখ কৰিছে। ভাৰতত প্ৰতিটো ধৰ্মৰ লোকৰে সম অধিকাৰ আছে, এই কথাও উল্লেখ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। ৱাকফ সংশোধনী আইন ভাৰতীয় সংবিধান বিৰোধী বুলি ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছে। আৰু এই আইনৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে সংবিধানক দুৰ্বল কৰিব বিচাৰিছে বুলিও ভাষণত উল্লেখ কৰিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। আৰু মুছলমানক লৈ ভ্ৰম বিয়পোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে বিজেপিয়ে। আৰু ভাৰতীয় সমাজক ধৰ্মৰ ভিত্তিত ভাগ ভাগ কৰিব খুজিছে বিজেপিয়ে, এই মন্তব্য গৌৰৱ গগৈৰ। আৰু মুছলমানক দুৰ্বল কৰাৰ বাবে এই ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক অনা হৈছে সদনত। বিজেপি চৰকাৰে ঈদৰ সময়ত ৰাজপথত নামাজ পঢ়িবলৈ দিয়া নাই মুছলমানক। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কে কেনেধৰণৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিব সেই কথা উল্লেখ কৰিলে গৌৰৱ গগৈ। আৰু বিজেপিৰ কেইগৰাকী সাংসদ মুছলমান সেই কথাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে। মুছলমানৰ পৰা কিয় বিচৰা হৈছে ধৰ্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ? এয়া সংবিধান বিৰোধী কাৰ্য বুলি সংসদৰ মজিয়াত গৰ্জন গুজৰি উঠা পৰিলক্ষিত হ'ল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। ৱাকফ বৰ্ডক দুৰ্বল কৰিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে, এনেধৰণৰ কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। আৰু সেইবাবেই এই আইনখন জোৰ জবৰকৈ অনা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ মাটি কাঢ়ি অনাৰ বাবে এই আইনখন অনা হৈছে। আৰু এনেধৰণৰ কেতবোৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰি এতিয়া সদনৰ মজিয়াত উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে। মুছলমানসকলে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগ দিছিল। চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ত মুছলমানসকলে নিজৰ আত্মবলিদান দিছিল। 2 লাখ উলেমা স্বাধীনতাৰ বাবে শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছিল। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ তাৰিখত সেইসকল মুছলমানৰ পৰা কিয় ধৰ্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বিচৰা হৈছে? জিন্নাৰ 2 ৰাষ্ট্ৰৰ নীতিৰো বিৰোধিতা কৰিছিল মুছলমানসকলে। আৰু সেই মুছলমান লোকৰ মাজতেই বিভেদ আনিব বিচাৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। ৱাকফ সংশোধনী আইনক লৈ লোকসভাৰ মজিয়াত গৌৰৱ গগৈৰ তীব্ৰ গৰ্জন দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আজিৰ দিনটোত। আৰু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ মুছলমানৰ পক্ষত থিয় দি লোকসভাৰ মজিয়াত মাত মাতিলে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। ভাৰতীয় সংবিধানৰ মতেই মই সদনৰ মজিয়াত ভাষণ ৰাখিছো বুলি উল্লেখ কৰিলে। আৰু সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ভাৰতত প্ৰতিটো ধৰ্মৰ লোকৰে সম অধিকাৰ আছে আৰু সকলোৰে বাক স্বাধীনতা আছে, জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে। ৱাকফ সংশোধনী আইন ভাৰতীয় সংবিধান বিৰোধী, এই কথাও সুস্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰি এক প্ৰকাৰ তোলা ধূনা দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল চৰকাৰক। আৰু এই আইনৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে সংবিধানক দুৰ্বল কৰিব বিচাৰিছে বুলি কেতবোৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে। আৰু আনফালে গৌৰৱ গগৈয়ে উল্লেখ কৰিলে যে মুছলমানক লৈ ভ্ৰম বিয়পোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে বিজেপিয়ে। ভাৰতীয় সমাজক ধৰ্মৰ ভিত্তিত ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। আৰু মুছলমানক দুৰ্বল কৰাৰ বাবে এইখন ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰা হৈছে। দেশত এই আইন আনিব খোজা হৈছে। বিজেপি চৰকাৰে ঈদৰ সময়ত ৰাজপথত নামাজ পঢ়িবলৈ নিদিলে মুছলমানক। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিজেপিৰ কেইজন সাংসদ মুছলমানৰ সাংসদ আছে সেই প্ৰশ্নও গৌৰৱ গগৈয়ে উত্থাপন কৰিলে। মুছলমানৰ পৰা কিয় ধৰ্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বিচৰা হৈছে? সকলো ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰি এক প্ৰকাৰ সদনৰ মজিয়া উত্তাল কৰি তুলিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক শুনাই ল'ব খুজিছোঁ, য'ত সদনৰ মজিয়াত ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে সাংসদগৰাকীয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি এক প্ৰকাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক তোলা। जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है। और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें, हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। आप इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे
कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सौभाग्य है कि पिछले सदन में मैं अयोध्या राम मंदिर पर अपने पार्टी का मैंने अपना व्यू, अपने पक्ष रखा और आज वक्फ संशोधन 2025 पर अपनी दल का और विपक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखा और अयोध्या राम मंदिर में भी और आज के वक्फ के संशोधन में भी मेरा एक ही मार्गदर्शक है, वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान जो कहता है कि हमारा भारत में हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और साथ साथ में यह कहता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। आज इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। सर, मेरा तो मैंने जिस दिन भी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन भी आदरणीय मंत्री को मैंने सुना और आज भी मैंने उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस दिन भी अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने कहा कि इसको बिल, भारत एक सनातन धर्म का एक देश, 7000 पुराना, उससे भी पुराना ये देश जिसमें हर धर्म और हर संस्कृति, हर परंपरा को हम सम्मान करते हैं। आज सरकार को ये हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम किस धर्म को हम विश्वास रखते हैं। क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? ये संविधान के विरोध में नहीं है, ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं है। सरकार क्यों धर्म के इस मामले में दखलंदाजी कर रही है कि आप इस धर्म का अविश्वास करते हो कि नहीं हो, उसका पहले मुझे सर्टिफिकेट दो। ये किस प्रकार का न्याय बना रहे हैं? ये किस प्रकार का कानून हम बना रहे हैं? और ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड और कमजोर हो और इसीलिए जो रेवेन्यू वाला क्लॉज है 7% से 5% इन्होंने घटा दिया। मेरा सुझाव, हमारे तरफ से यह सुझाव है कि 7% से 5% घटाने के बजाय आप 7% से 11% और इस रेवेन्यू को और इंक्रीज करिए। ये बिल सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदायों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। या सिर्फ इसी बिल में है या दूसरे में भी जो चैरिटेबल एक्ट्स हैं विभिन्न धर्मों के, विभिन्न स्टेट्स के, क्या उसमें भी यूआपा एक्ट आएगा या सिर्फ इसमें? क्या संदेश देना चाहते हैं? किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं?
बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थ्योरी को पूरी तरीके से नकारा, आप उस कौम पर लगा रहे हो। सर यही है इनका डिवाइड एंड रूल, यही है इनका डिवाइड एंड रूल। बहुत लोग पूछते हैं सर हमारा राष्ट्रवाद क्या है। सर हमारा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म फॉर अस इज बीइंग यूनाइटेड in our shared love for our Bharat Mata and the mutual respect for her culture, language, dress, food and religion. It is the love for our national flag, the Tiringa, जिसकी सम्मान आपने नहीं की थी. It is the sacrifice of the Indian freedom movement, जिसमें आपने भाग नहीं लिया. It is our thirst for knowledge to seek excellence with limited resources, to be creative, to have the courage, to acknowledge the injustice of the past and have the wisdom to build new bridges. ये है हमारा राष्ट्रवाद और ये राष्ट्रवाद आज हमारे संविधान में उल्लेखित है. तो सर बार बार ये सरकार कहती है ये माइनॉरिटीज के पक्ष में है, लेकिन जब अमेरिका से माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट आता है कि माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी होती है तो इनको दुख होता है. जब यूएस का रिलीजियस कमीशन का रिपोर्ट आता है तब इनको दुख होता है. जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें. हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें. इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया. आप इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे, कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखिए. अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सौभाग्य है कि पिछले सदन में मैं अयोध्या राम मंदिर पर अपने पार्टी का मैंने अपना व्यू, अपने पक्ष रखा और आज वक्फ संशोधन 2025 पर अपनी दल का और विपक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखा और अयोध्या राम मंदिर में भी और आज के वक्फ के संशोधन में भी मेरा एक ही मार्गदर्शक है, वो है भारत का संविधान. भारत का संविधान जो कहता है कि हमारा भारत में हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और साथ साथ में यह कहता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता. ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था. आज इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य.
पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। सर, मेरा तो मैंने जिस दिन भी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन भी आदरणीय मंत्री को मैंने सुना और आज भी मैंने उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस दिन भी अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने कहा कि इसको बिल, भारत एक सनातन धर्म का एक देश, 7000 पुराना, उससे भी पुराना ये देश, जिसमें हर धर्म और हर संस्कृति, हर परंपरा को हम सम्मान करते हैं। आज सरकार को ये हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम किस धर्म को हम विश्वास रखते हैं। क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? ये संविधान के विरोध में नहीं है? ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं है? सरकार क्यों धर्म के इस मामले में दखल अंदाजी कर रही है कि आप इस धर्म का आप विश्वास करते हो कि नहीं हो, उसका पहले मुझे सर्टिफिकेट दो? ये किस प्रकार का न्याय बना रहे हैं? ये किस प्रकार का कानून हम बना रहे हैं? और ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड और कमजोर हो, और इसीलिए जो रेवेन्यू वाला क्लॉज है 7% से 5% इन्होंने घटा दिया। मेरा सुझाव, हमारे तरफ से यह सुझाव है कि 7% से 5% घटाने के बजाय आप 7% से 11% और इस रेवेन्यू को और इंक्रीज करिए। ये बिल सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदायों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। या सिर्फ इसी बिल में है या दूसरे में भी जो चैरिटेबल एक्ट्स हैं विभिन्न धर्मों के, विभिन्न स्टेट्स के, क्या उसमें भी यूआपा एक्ट आएगा या सिर्फ इसमें? क्या संदेश देना चाहते हैं? किस कौम को अब आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, अब उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की,